Very good morning, my dear students. Today we are about to start the chapter Forests and Wildlife Resources, chapter number 9. The existence, progress, and development of man is dependent on resources. Whatever we have got, the water, land, air, it should be pure and purified. But mostly, due to the human nuance, human inability, or you must say the basic instinct of humans, we are left behind with the chaos. All the things are in chaos. As we look at the environment, as we look through the rivers, the sea, the creature, the aquatic animals, the marine life, the humanity, every single thing is downwards. And though it is said too many times, and you've heard it before, that forests are the lifeline of the planet. The forest cover is getting less and lesser. You've heard about the Canada nowadays, that Canada is suffering from heat wave and the jungles are on wildfire. I've heard that Los Angeles before. Then Australia, the whole Australia was suffering from that jungle fire, bushfire. So this is our responsibility to take care of our planet. It is our planet. When the jungle comes, when we talk about jungle, we have got wildlife also. And wildlife is the thing which gives us every single thing to survive on this planet, because we are the part of that ecosystem. We are not apart from that, and we think that we are on the topmost notch, but that is wrong. Every single thing is needed. It's just like machinery. Every single bolt and switch is important. So let us talk about forests and wildlife resources. The existence, progress, and development of man is dependent on resources. From the times immemorial, the existence, when the man survives, सबसे पहले बात करते हैं. We talk about the humans. They always chosen to live near river. We talk about Mayan civilization, माया सभ्यता, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. तो पेरू के अंदर भी आप देखेंगे तो वाटरफॉल के पास में ही आज भी वाटरफॉल्स वहाँ पे हैं. देन इफ़ यू मूव टू रिवर नाइल, वो उसके अमेज़ॉन, मायन वॉज विथ अमेज़ॉन रिवर. देन मेसोपोटामियन, जो मिस्र है, जिसको मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट. तो आज का जो इजिप्ट है, पुराना जो मिस्र है, वहाँ पे आपने सुना होगा पिरामिड्स हैं. Pyramids are very close to Nile river Nile, नील नदी. फिर आप देखेंगे मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये जितनी भी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दीज वर वेरी क्लोज टू सप्त सिंधु सिस्टम. सप्त सिंधु, 7 नदियों के आसपास में, रावी, चनाब, झेलम, ये सारी नदियाँ हमारे सिस्टम में थी. अब उसके बाद उनका हमने कितना बुरा हाल किया वो सबको पता है. अगर आप बात करें तो त्रिवेणी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर संगम है, विच गोज़ गंगा, यमुना एंड सरस्वती. अब बहुत लोगों को पता नहीं है कि गंगा यमुना तो है, पर सरस्वती इज़ गॉन. सरस्वती नदी ही नहीं है. अब कई लोग ऐसा दावा करते हैं, साइंटिस्ट प्रूव दैट सरस्वती गोज़ इन एन अंडर करंट, वो उसके अंदर में मिलती है इलाहाबाद के अंदर, पर वो एक्चुअल में आती कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान से वो नदी बहती है और इट इज़ नोन एज हरावती. और इसमें संस्कृत के अंदर भी इसको बोला गया है सरस्वत ई, इसको टुकड़ा किया है. तो सरस्वत मीन्स पूल, पॉन्ड्स, उसमें नीचे से पानी बढ़ता है, तो वो पानी ऊपर से नहीं गिरता, उसमें ज़मीन से पानी आता है. तो सरस मतलब ब्यूटीफुल, द रिवर ऑफ ब्यूटीफुल पॉन्ड्स. वो पॉन्ड्स जब पूरे बढ़ जाते हैं तो सरस्वती बहने लगती है. हरावती बोला गया है इसे. तो दीज काइंड ऑफ रिवर्स आर ऑलमोस्ट गॉन. When I was young, I knew that there was a river in Rajasthan named Luni River. Luni, why? Because the water was salty because of the khar. And we used to go over there, we used to enjoy in that water.
in my when I was very young. But later on, I came to know when I get back to Rajasthan after so many years, the river is whole gone because of the industrial waste in the area. And people are not taking care of it, and due to that drudgery of the sand, they took away the sand for the construction, illegal mining of the sand. So this is a responsibility. So then development of man is dependent on resources. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times. ये शुरू से ही है. हमारे घर की भी जो लकड़ियाँ बनती है, सागवान जो बेस्ट लकड़ी है वो आती है, चीड़ की लकड़ी आपने सुनी होगी, रेजिन है, बहुत सारे रेजिन हम यूज़ करते हैं, गोंद जिसको यूज़ करते हैं, तभी हम गोंद के लड्डू भी खाते हैं फॉर आर बेटरमेंट्स. ये क्या होता है? इट्स अ रेजिन ऑफ अ ट्री. फिर आप हनी बी के शहद है वो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं. इट्स अ वेरी नाइस थिंग, बहुत पावरफुल है. पुराने टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि देयर वर नो फ्रिज आउट देयर, तो इफ़ द किंग्स वांटेड टू हैव और रेलिश मैंगोज, तो मैंगोज हैव गॉट अप्रोप्रिएट टाइम in the summer also, in the summer only. So what they did was उस मैंगो को कटवा के, उसकी जो फाँक होती है उसे कटवा के उसे बड़े बड़े जो जार्स थे किसके, शहद के, उसके अंदर वो डलवा देते थे. जब वो उसके अंदर डलवा देते देन व्हाट हैपन्स, तो वो उसके अंदर सेफ रहते थे. और जब उनको जब खाना होता तो उसमें से निकलवा के और धो के, और वो आम कभी भी किसी भी टाइम पे दे कैन रिलिश इट. तो दिस वॉट देयर फॉर्मेट ऑफ प्रिजर्वेशन. इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ हेल्पफुल टू द मैनकाइंड, विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज एंड एनिमल्स. Nature since early times, wherein the forests are considered to be very important resources. Forests are extremely important for us. A general meaning of forest is the accumulation of trees. अब general meaning क्या है इसका? Accumulation of trees. कुछ trees इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग टाइप के trees हैं वो इकट्ठे हैं, scrubs हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, and the heaps of grass. थोड़ी घास भी है वहाँ पे. In natural vegetation only, that vegetation is included which cannot be raised naturally without the help of man. अब ये एक नेचुरल वेजिटेशन के अंदर अपने आप उग जाता है और इसमें आदमी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. हालांकि मैन मेड फॉरेस्ट भी हैं, बट जो नेचुरली उगता है वही फॉरेस्ट है. नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज़ अवेलेबल ओनली इन हिमालयाज. नाउ वी कॉल इट, जो सब सारा वेजिटेशन जो नेचुरल फॉर्म में है वो हिमालयाज में ही है. सुंदरबन है बंगाल एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट की कुछ एरियाज़ के अंदर ये फॉरेस्ट अवेलेबल है. दो वो अलग टाइप के डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत पत्ते नहीं होते, दे आर मोर ऑफ कैक्टसेस, बट स्टिल द फॉरेस्ट इज़ अ फॉरेस्ट. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज़ मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. फॉरेस्ट में अब डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9. अब आपने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ा है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से 9 में. हेयर वी विल नो अबाउट 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट. वन इज़ विद मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप. हु ओन्स इट? अब ओन जो ओन करते हैं उनकी क्या हालत है? कई एडमिनिस्टर करते हैं लोग मिलके कोऑपरेटिव तरीके से, कई लोग मैनेज करते हैं. Then types of forest according to administration. Number 1 is reserved forest. Such forests are under the control of government directly. Here there restriction on lumbering. यहाँ पे लकड़ी काटने के ऊपर पाबंदी है. Collection of woods और with pasturing. Collection of wood के ऊपर भी प्रॉब्लम है और pasturing के ऊपर भी, जो चुने जो जिसको बोलते हैं हम कि लकड़ी काटना, पास्चरिंग जानवरों को ग्रेज कराने पे भी रोक है. देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड और टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज. अब लोकल पीपल हैव गॉट ऑल द राइट्स टू कलेक्ट द वुड. अब यहाँ पे लकड़ी चुनने की आज़ादी है जो गिरी हुई है, और अपने एनिमल्स को ग्रेज करने की आज़ादी भी है. देन unclassified forests. These forests are still not classified. There is no restriction on tree felling or animal grazing. अब इनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और इसके पेड़ भी काटे जाते हैं और एनिमल्स भी चाहे तो ग्रेज कर सकते हैं. ये अभी तक
कंट्रोल में नहीं है. Then the classification of forests according to ownership, administration and management. The forests of India are classified into 3 types on the basis of ownership, administration and management aspects. Number 1, state forest. Central or state government controls such forests. Most of the forests of the country fall under this category. हम स्टेट फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज फेल करती हैं. जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे ऊपर कंट्रोल कर सकती है. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट उसके अंडर में ही आते हैं. देन कम्युनिटी फॉरेस्ट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट. लोकल जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल किनका है? ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, भावनगर म्यूनसिपैलिटी कह सकते हैं आप, कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट्स एंड पंचायत का. देन प्राइवेट फॉरेस्ट. सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो इंडिविजुअल्स के हैं, जो उनको ज़मीन में मिले हैं, काफ़ी ज़मीन है, फॉरेस्ट उगाए हैं, तो वो उसका ध्यान रखें न रखें. सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा. ओडिशा के अंदर बहुत सारे हैं, मेघालय के अंदर बहुत लोगों के पास है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में. सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इन हैपहेज़र्ड कंडीशन. और कुछ फॉरेस्ट तो बड़े ही बुरे हालत में, और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन. और कुछ तो बिल्कुल ही बंजर हैं, ज़मीनें हैं पर फॉरेस्ट नहीं है. देन डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट को बर्बाद कर देना. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन, बट दिस इज़ वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स. इट कैन बी सेड दैट इट इज़ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन. ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है. इसको ऐसा बोला जा सकता है कि इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन. आदमी के प्रोग्रेस की वजह से डिफॉरेस्टेशन है. ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, हाउएवर इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस. पेड़ों को गिराया जाता है नेचुरली, ताकि अगर आप हिसाब से देखें तो वो इतना नेग्लिजिबल है कंप्लीट इन्फ्लिक्टेड बाय द ह्यूमन. ट्रीज़ खुद भी गिरते हैं, कुछ नुकसान होता है, नेचुरल तो होते ही हैं डिस्ट्रॉयड, पर देखें इंसान सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. देन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ वाइड स्प्रेड. द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर. सबसे पहली चीज़, द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ वाइड स्प्रेड. द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर. ग्रीन हाउस इफेक्ट्स become more intense, which is removed forest cover, the soil is eroded. अगर वो उसको हटाते हैं, soil erode हो जाती है. पेड़ कटने के बाद soil erosion में चली जाती है. wind erosion, water erosion, दोनों के अंदर से. and the problem of the farm fertility decreases. ऊपर जो कवर है soil के ऊपर, lithosphere के ऊपर जो कवर है, fertile कवर है, वो डिक्रीज हो जाता है. in the peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation. अब इसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है. मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लॉस्ट देयर अबोर्ड्स. कई ऐसे जीने जो जानवर थे उन्होंने अपना अबोर्ड, घर खोया है. एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन settlements in search for food and water. We have heard it many times that many of the animals have chosen to eat calf or a goat somewhere near the village because their natural abode is gone. Their forest has been encroached by the other people. So they have chosen to come to the city or nearby village in search of food. More instances are recorded of carnivorous animal killing the domestic animals of these shepherds who live near the forest. It is a widely known fact that because Bhavnagar area is also connected with Jaisar as well as Gir forest. So it is known to many people that leopards come over here on most of the times, and leopard attack the animals as well as kids. There are cases that the kids were sleeping with their mother and leopard has took them away because they are in search of the food. Then the remedies of forest conservation. Research should be carried out to find the option of wood. First of all, this is a very important thing. Wood का option क्या है, उसे सर्च करना बहुत ज़रूरी है. This will reduce the usage of wood and it will save the forest. सबसे पहले तो usage of wood को रोका जाए. wood के options में plastic है, PVC है, आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग एल्यूमिनियम सेक्शंस हैं. अगर वो सेट किए जाएँ तो wood के मुकाबले उनका फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा. Wherever the trees are to be cut inevitably,
for the development work or for necessity, new trees of the same species should be grown. सबसे बड़ी बात, अगर ट्रीज को काटा जाता है इनएविटेबली बिना रोके हुए डेवलपमेंट वर्क के लिए, नेसेसिटी के लिए, रेलवेज आर गोइंग ऑन, वाटर वर्क्स आर गोइंग ऑन, or any roadways are going on, then at that time the trees has to be cut because they are in between. If they are cut down, it is our responsibility to regrow them, plant them. New trees of the same species should be grown. There should be a total ban of cutting trees which are not grown fully. जो पूरे तरीके से नहीं उगे उन्हें नहीं काटा जाएगा. Those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs. अब ये the industries, some of the industries such as furniture industry is running under the forest laws. तो they have to be compelled or they have to be told, उनके ऊपर फोर्स किया जाना चाहिए, कंपल्शन होना चाहिए कि वो अफॉरेस्टेशन करें, यानी इतने पेड़ काटे तो उससे डबल तो लगाएं ही, क्योंकि कुछ लोग मोर्टेलिटी, कुछ पेड़ मोर्टेलिटी रेट से ख़त्म हो जाएंगे. तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Under the name of the ecotourism, the forest cover should not be damaged and should be strictly controlled. और फॉरेस्ट कवर के अंदर में इको टूरिज्म भले पब्लिक आए, फॉरेस्ट कवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. लोग उसके अंदर पॉलीथीन ना डालें, कचरा ना डालें, इसका ध्यान रखें. वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग द लोकल पीपल. लोकल पीपल के अंदर पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानें. The importance of forest and their conservation strategy should be included in the syllabus of schools and colleges. और फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए, कंजर्वेशन के बारे में पता चलना चाहिए. Strategies should be included in the syllabus of schools and colleges. They should explain the necessity of forest conservation. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करके साथ में लाना चाहिए. Social forestry and agroforestry should be developed intensely by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. नाउ सोशल फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, सब सोसाइटी के अंदर कुछ लोग इकट्ठे होकर पेड़ों का ख्याल रखें. एग्रो फॉरेस्ट्री इट्स अ वेरी फाइन थिंग. जैसे एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वैसे 5 लेयर फार्मिंग होती है, उसके अंदर ट्रीज़ भी कुछ उगाने चाहिए अपने खेत के चारों तरफ. वो पेड़ आप 8 या 10 साल के बाद काट सकते हो, टीक वुड है, तो इट गिव्स यू वेरी गुड रिटर्न्स, मोर देन बैंक. अच्छा खासा पैसा उसमें से निकलता है और वापस वो रीग्रो कर जाते हैं. उनको ध्यान रखो वापस 10 सालों के लिए. तो कटिंग विद द परमिशन ऑफ द गॉड, और वो एक लेयर को कट करें, दूसरे पेड़ उगते रहें, तो ऐसे 10 सालों तक आप 1000 पेड़ उगा रहे हैं, हर साल 1000 पेड़ उगा रहे हैं, तो 10 सालों में आपके पास 10,000 पेड़ होंगे. और जो 10वें साल में जो पहले 1000 पेड़ हैं वो 10 साल के हो चुके होंगे. तो दिस इज गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ वुड. तो वो दैट वुड कैन बी कट डाउन एंड कैन बी वर्क. जैसे हम खेती करके बेचते हैं, तो वैसे एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री बोला गया उसे, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नाउ इट इज. शुड बी डेवलप इंटेंसली टू टेक प्लान स्टेप फॉर द नेसेसिटी ऑफ फॉडर एंड फायरवुड. इन प्लेस ऑफ फायरवुड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लाइक सोलर एनर्जी, इसके ऑप्शंस भी हैं. सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस एट्सेट्रा शुड बी इंप्लीमेंटेड. लकड़ी को जलाने की बजाय सोलर एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए. नेचुरल गैस देखेंगे तो अभी तो कंपलसरी हो चुका है, सब ग्रीन ऑटोज़ आपने देखे होंगे जो CNG से चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस. देन फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली. फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को बहुत स्पेयरिंगली, शांति से यूज़ करना चाहिए. इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ ट्री ग्रोथ फास्टर एंड हेल्थियर, इन्फेस्टेड ट्री शुड बी रिमूव्ड. कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो इन्फेस्टेड है, जिनके ऊपर उदाई लगी हुई है, उसे पहले ही निकाल देना चाहिए ताकि और पेड़ों को नुकसान ना पहुँचे, बीमारियों को. फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज ऑफ फॉरेस्ट. इट इज़ ये तो होता ही रहता है, फॉरेस्ट फायर तो फैलती है. अ सेपरेट सिस्टम ऑफ द फोर्स एट नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर डाउजिंग द फायर. और उनको दबाने के लिए नेशनल लेवल पे डाउजिंग द फायर को दबाने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर ये काम करना चाहिए. ड्यू टू द इंक्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ईजी ट्रैवल, thousands of pilgrims reach religious places in forested area to attend the Bhandara, fairs or the Parikrama, circular level. At that time, the litter should be cleared properly. और litter को साफ तरीके से क्लियर करना चाहिए. अदरवाइज द फॉरेस्ट्स आर पॉल्यूटेड. अदरवाइज क्या होगा, फॉरेस्ट पॉल्यूटेड हो जाएंगे. एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पास्चर. और एक एरिया डिमार्केटेड और रिजर्व किया जाना चाहिए एनिमल पास्चर के लिए, ताकि उसके अलावा कोई और वहाँ ना जा सके. देन वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी.
There is a large diversity in climate and physiography in India. Due to this geographical diversity, large variation is seen among the insects, birds, animals, and vegetation. Large diversity in physiography in India. There are certain insects, birds, animals, and vegetation. आपने सुना होगा तो जैसे गिर का जो लायन है और टाइगर, दुनिया में एक ही जगह पे टाइगर और लायन सिर्फ दुनिया में एक ही जगह है, दैट इज़ इंडिया. दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस. वी हैव गॉट अ great biodiversity. There are among 15 lakh species of animal birds in world. 15 लाख species हैं animals और birds की. Out of this 81,000 जो हैं 251 species are found in India. 81,000 हमारे पास ही हैं. India stands 12th in the world in term of biodiversity. हम 12th नंबर पे हैं biodiversity पे. Animals from Asia, Europe and Africa are seen in India. ज़्यादातर जो आप देखेंगे एशिया के जितने एनिमल्स हैं, यूरोप और अफ्रीका के, वो सब इंडिया में भी सीन किए जाते हैं. अफ्रीकन ज़रख आप देखेंगे तो वो हमारे पास भी है. हाइना, ज़रख इज़ हाइना. यूरोपियन वुल्फ है हमारे पास. देन वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डियर, कस्तूरी जिसको हिरन बोलते हैं. एलिफेंट है. गिबन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, बंदर होता है हमारे पास है, etc. The biodiversity of India includes black bear, रीछ जिसे बोलते हैं भालू, वो हमारे पास. वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला राइनोसरस. डियर, अलग अलग टाइप के. एंटीलोप्स, जिसे एंटीलोप्स बोला जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स. पीकॉक है. घोरड़, बस्टर्ड हॉक जिसे बोलते हैं, बस्टर्ड है, हॉक है. किंगफिशर, फ्लैमिंगो बर्ड्स हैं. The snow leopard in Himalayas and the red panda found at the same altitude are distinguished animals here. बहुत ही ज़बरदस्त एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, वो है. 92 तक तो लगे कई लोगों को पता ही नहीं था कि स्नो लेपर्ड नाम का कोई जानवर है भी. फिर 91 some British photographer from BBC or India Today, I think he has taken the pictures of snow leopard and it was filmed first. So people came to know that there is a legendary character, legendary name of snow leopard. Leopard मिलता है. Currently India is only country in the world where tiger and lion are seen moving in the natural abode. जैसा मैंने बोला, दुनिया में इकलौती कंट्री है जहाँ टाइगर और लायन दोनों एक साथ नेचुरल अबोर्ड्स में. During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Kevladev National Park, भरतपुर राजस्थान, and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. अब विंटर के अंदर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो डिस्टेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत सारी मात्रा में आते हैं इनटू द वाटरशेड एरिया ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, एंड नल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर मनाने के लिए आते हैं. सी टर्टल्स केम टू ले एग्स अलॉन्ग विद द सैंडी कोस्ट ऑफ ओडिशा. सी टर्टल्स आते हैं ओडिशा के सैंडी कोस्ट पे. इंडियन पाइथन फेमस है. वेरियस स्नेक्स एंड किंग कोबरा आर फाउंड इन सदर्न रेन फॉरेस्ट. नीलगिरी के जो पहाड़ है वहाँ पे आपको सदर्न रेन फॉरेस्ट के अंदर ये अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. देन वाइल्ड लाइफ और एक्सटिंक्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. डिस्ट्रक्शन क्या है रीज़न का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. हंटिंग एक हॉबी थी पहले. रेड पैंडा आप देखेंगे, देखने में रेड पैंडा जैसा तो नहीं लग रहा है पर रेड पैंडा है. ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं. गंगा की डॉल्फिन बहुत फेमस है दुनिया में. टाइगर प्रोजेक्ट है हमारे पास. लेपर्ड है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, राइनो प्रोजेक्ट है, वन ऑन राइनो. उनकी क्या क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स किस टाइप की, घड़ियाल जिसे बोला गया है. ठीक है, कैसी सेंचुरीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर. So that's it for today. Study hard, keep learning. If you've got any kind of doubts or any problems, please feel free to ask. I'm always here for you. Thank you so much.